So today we are going to learn some important formulas of physics from chapter light. These formulas are very important because we all know that in physics we have number of questions, numericals questions and problem solving questions. So for solving these numericals, for solving these problems, we must know these formulas, we must remember these formulas. So all the problems and numericals we can solve based on these formulas. So these are very important formulas. So let's start our lecture. In this lecture, I am going to discuss formulas with you people, and you must remember all these formulas. The first formula, this chapter we need to remember, that is mirror formula. That is mirror formula. Relationship between image distance, object distance, and focal length. Image distance, object distance, and focal length. Like if we have a question, and in that question, we two parameters are given. The one image distance is given and the object distance is given, and if you need to find out the focal length, so you can find the focal length by using mirror formula. You can find image distance by using mirror formula, and you can find object distance by using mirror formula. So mirror formula हमारे पास क्या है? Mirror formula जो है वो है 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. So mirror formula gives relation between image distance, object distance, and focal length. Image distance, object distance, and focal length. So, where f is the focal length, where f is the focal length, v is the image distance, and u is the object. 1 by v plus 1 by u plus is equals to 1 by f. Where f is the focal length, u is the object distance, and v is the image distance. ठीक है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास लेंस फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो कौन सा है? लेंस फॉर्मूला. तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है हमारे पास 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, where v is the image distance, u is the object distance, and f is the focal length. F is the focal length. Now इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास वो है मैग्नीफिकेशन. वो है मैग्नीफिकेशन. As we all know that magnification can be defined as the ratio of height of image to the height of object. Ratio of height of image to the height of object. तो जब भी हमें क्या निकालना होता है, चाहे आपको height of image निकालनी है या height of object निकालना है, तो आप मैग्नीफिकेशन को लगा के height of image निकाल सकते हो, height of object निकाल सकते हो. या अगर आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो अगर आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तब भी आप क्या कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन से निकाल सकते हो. और अगर आपको इन चार पैरामीटर में से कोई भी तीन दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो फोर्थ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो. सो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. The ratio of height of image to the height of object, where hi is the height of image and ho is the height of object. ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ वन वो है पावर ऑफ लेंस. वो है पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है हमारे पास? पावर ऑफ लेंस जो होता है हमारे पास वो होता है 1 by focal length. किसके बराबर होता है? 1 divided by focal length in meter. 1 divided by focal length in meter. उसके बाद आता है जो हमारे पास वो आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालना होता है हमें डिफरेंट मीडियाज में, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास टू टाइप्स हैं. एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. और दूसरा जो होता है हमारे पास उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये किसके बराबर होता है? ये जो होता है हमारे पास ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. लाइक इफ यू हैव टू मीडियाज एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. अगर आपके पास दो मीडियाज हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, आपको उनमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या है उन दोनों में, तो वो जो कहलाता है हमारे पास उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इसके बाद भी हमारे पास आफ्टर दैट हमारे पास है स्नेल्स फार्मूला.
इसके बाद है हमारे पास स्नेल्स फॉर्मूला। स्नेल्स फॉर्मूला जो है हम सब ने जैसे कि स्नेल्स लॉ तो पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो स्नेल्स फॉर्मूला जो है वो क्या है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्नेल्स फॉर्मूला किसके बराबर होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ r i टू द साइन ऑफ r, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ i टू द साइन ऑफ r। जब हम रेशियो निकालते हैं where I किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस and r is the angle of refraction, where I is the angle of incidence and r is the angle of refraction। तो जब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ट्वाइस, यहां से यहां तक हमारा f है फोकल लेंथ। अगर इसके साथ एक और f यहां से यहां तक जोड़ देंगे तो ये दोनों f जो है मिलके बनेगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों f मिलके क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ को भी निकाल सकते हैं। इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास किसके बराबर है, 2 into f ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब इसी से हम फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं, व्हिच इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ जो होगा हमारे पास वो होगा r/2, r/2। तो ये दो जो फॉर्मूलाज हैं, ये और ये फॉर्मूला भी क्या है हमारे पास, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनसे क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये जो हमने ये 8 9 10 फॉर्मूलाज पढ़े, 9 फॉर्मूलाज पढ़े, इन सब फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी न्यूमेरिकल है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज पढ़े सो इनको हमने क्या करना है, रिमेंबर करके रखना है। ये हमें पूरी फिजिक्स में आगे तक हाई क्लास में भी क्या होगे, यूज कर सकते हैं हम इनको, वहां पे भी हमारे पास क्या होगी, काम आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज होता नहीं।